Assalamu alaikum. You guys are watching Zab FM Digital. I'm your host today, Ruba Jhangra. The program of today is Startup Weekend, brought to you by Babs, powered by Zebest. Today we have some fellows to share their intellectual thoughts and entrepreneurial innovations with us. So let's get into the introductions. Assalamu alaikum. My name is Fiza and I'm a fifth year Zabist student and did my schooling from Ladybird Grammar School. Then I did my intermediate from PCHS College, and then now I'm here in Zabist. And yes, Has it been a good journey? yes, it's been a गुड जर्नी. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं. रियली रियली नाइस. अभी भी बहुत चीज़ें सीख रहे हैं एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. कुछ ऐसा जो आप कहोगे कि आपकी एजुकेशन जर्नी में आपके चाइल्डहुड से साथ है. Is it procrastination or pulling all-nighters? Pulling all-nighters, I would say. So that's going on from college to yes, school? yes, school days से. सही है, बिल्कुल ठीक है. आप अपने बारे में बताएं कुछ. Okay, so my name is Nuzha and I did my O levels from Karachi Public School and did my A levels from Cedar College. Currently, I'm enrolled in BABS program at Zebist. So yeah, I'm in my 5th semester currently. And how has your journey been? It's been amazing throughout and it's just going. सही है, कुछ नए नए experiences. Yeah, we were just learning things with the past. अलग-अलग ऐसी जगहें हैं कि आपका बिल्कुल exposure different Yeah, होगा. it was completely different. How would you describe your school life? It was chaotic, I must say. सुबह 7 बजे उठना, it was, so it's a bit lenient up. So yeah. हाँ, ये तो है. Attendance, school timings, uniform. Of course, uniform. Which was it? Color क्या था uniform का? It was black and it was a gown. So and we do have a hijab as well with the uniform. So it was very difficult for us to carry in summery weather. Because yes. But you were lucky with the black at least. Yeah. Imagine Yeah. having a white uniform. That would be romantic. And what about you, sir? So my name is Muhammad Zarshan Mustafa and I'm currently in my 5th semester and I'm also doing BABS program. So the journey at Zabist has been so far so great. मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही एनर्जेटिक और तफरी में ही गुजरी है. I feel like boys थोड़े से होते हैं. हाँ. उनके Yes. पास ज़्यादा fun stories Yeah. होती हैं शायद. क्योंकि स्टडी में इतना कोई वो नहीं था. Is this your first time pitching an idea? Probably yes. Yeah, I think if I talk about myself, I had a lot of ideas outside, but still they didn't come up together. So this was the first one that came up together. So I'm very happy that I'm doing it. मतलब इस आइडिया पे हमने सोचा कि यार लेट्स डू दिस. ये बहुत Yeah. अच्छा है. मतलब सही यू नो है. क्रोशे इज अबाउट कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस. तो वी वर लाइक यार लेट्स डू दिस. ये बहुत बहुत ही एम्पावरिंग है. बहुत ही अच्छा एक जो है ना एक सेंटिमेंटल वैल्यूज इससे जुड़ी हुई हैं. तो हमने कहा ये करना चाहिए. पूरी details सब जानेंगे. सब आप इतना बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल. है. आप बताएंगे. Is this your first time pitching an idea? No, this is not the first time pitching an idea, but I've already done it for quite some time. Lekin this is an idea that I'm bringing out in the world with everyone else, and I'm brave enough to do it. That is really nice to hear. What is more difficult, explaining an idea or actually creating an idea in your mind? I think explaining it to the people that क्योंकि they just have this thought कि तो बस हम घर पे भी कर लेते थे. It's normal. What's different? So I think to communicate this to the people, this was difficult for us. उनको ये सब- बताना कि सिर्फ दिखने में क्या है? एग्जैक्टली. Basically. सब एक रियलिटी चेक देना चाहता है आपको. Like कोई लाइट बल्ब मोमेंट नहीं मिलता है, लेकिन वो ये सारा मैं पूछूंगी आप लोगों से कहाँ से आए हैं आपके आइडियाज. ठीक है. तो अब हम चलते हैं आपके आइडिया पे. ऐसे क्या आप मुझे बताएं. Tell us about your idea. What made you feel like this is the one I wanted to do, and how did you guys manage to actually come through with it? Very random thought. मतलब we are doing crocheting and 2 a.m. I was untangling a yarn with my mother and realized this is something really fun and interesting to deal with. उस चीज़ ने मुझे इतनी पेशेंस सिखा दी थी कि मतलब बहुत ही फन था उसको इसको इनोवेट करना. उसको मैंने सोच लिया था कि यार आई नीड टू डू समथिंग उसी चीज़ में. सही है. ठीक है. And what would you say? How did you realize कि ये ऐसा idea कि you should also support it? Yeah, so Fiza randomly called me and said that I was doing this, so कुछ करते हैं इसके बारे में, let's be innovative and think about it. Then something that I think was a very, like the thing that we did it personally was Pinterest. It helped us a lot.
तो उस पे जाके then we started searching random things and फिर उसके बाद we just got an idea कि yeah we can bring this into a big picture because ये बहुत पहले चीज़ें होती थी, अब it just vanished away completely. But if we look, it's very colorful and it's very innovative as well. So yeah. And how would you say about it? So basically, what I'm bringing in to their idea is my male perspective, as they wanted a male section in their jewelry. So I suggested them ideas like it can not only be butterflies or charms, etc. Like it can be man you likes to wear bracelets or beads or chains. So we can shift our idea towards that region as well. मतलब जरशान वाज द वन जिसने हमें आइडिया दिया कि सिर्फ हम क्यूटनेस और गर्ली चीज़ों में नहीं रहेंगे, वी कैन गो ओवर द बॉय स्टफ एज वेल, की चेन्स और जैसे स्टैनले के कप्स होते हैं बॉयज़ के, उसने कहा हम उसको भी आइडिया इनोवेशन हम इस तरह कर सकते हैं, तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू. ठीक है, so as far as I understand, the idea is to get crocheted stuff, ज्वेलरी भी और कुछ कवर्स वगैरह भी, Yeah. Yes. आपकी टारगेट मार्केट में मेल्स भी ऐड कर रहे हैं. Yeah. That is quite interesting and I feel कि during the winter season, in the fall effect, I feel कि crochet बहुत अच्छा time है, Yeah. specifically the time where TikTok पे भी do it yourself का ये बहुत trend Yeah. चला था in terms of Yeah. crocheting, but I feel it is a good time to relive something that has been a good trend before. Okay, so every idea tends to solve a problem. What does your idea do? Which gap does it fill? Okay, so our idea basically helped the women. There are a few people in our family who we think needed support. They are like the people who lives in villages, so they wanted help. So I think this would help them as well to build up something of their own and to earn for themselves and support their families in a much more positive way. So I think this would be something that would help. So you guys tend to buy these things and utilize their resources and then market it. Yeah, for we this are idea. doing it, Okay. What do you have to say about it? Exactly, my thoughts were same. When Nuzha called me and told everything that there are some people who need our help and उनको इतना अच्छा crochet जो है बनाना आता है, तो फिज़ा why don't we talk to them और उनकी हेल्प करते हैं. इस तरीके से उन औरतों की भी मदद हो जाएगी जिनको इतना अच्छा हुनर आता है लेकिन वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. जैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो अपने स्किल्स कहाँ यूज़ करें, तो हम उनसे चीज़ें लेके मार्केट कर सकते हैं. तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा आइडिया है और ये एक तरीके से रुबा उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन लोगों को स्ट्रेस है, एनजाइटी है, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्रोशे ज्वेलरी कर सकते हैं. मैंने एक जो है yarn को जो है अनटेंगल किया था, तो मतलब मेरा इतना सब्र और तहम्मुल उसमें लगा था एंड आई वाज लाइक जिस बंदे को स्ट्रेस एंजाइटी होगा वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा उस बेसिक चीज़ से. तो बहुत तरीक़ों से ना ये बहुत ही एक बहुत अच्छे वे में जो है हमारी हेल्प कर रहा था. हमने इस पर बहुत सोचा. तो आपने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया. आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? So, as my friends mentioned, the main perspective of our business was to empower the single women who are currently not employed and are having troubles in the workplaces. So we highlighted that as well into our business, and we thought that this would give them an opportunity that they couldn't seek in an open environment. So, like freely at the will. But additionally, what I thought was that jewelry is already mass produced in our community. So I don't believe that it holds the fundamental value that a handcrafted crochet would give to someone. So I believe that it reflects individuality and creativity as well, and it holds an emotional value that an ordinary jewelry won't be able to express to someone. True. सबको अच्छा लगता है एक स्पेसिफिक गिफ्ट. कोई ऐसा गिफ्ट आप लोगों को याद है जो फ्रेंडशिप बैंड स्कूल में या कुछ ऐसा स्पेसिफिक हैंडमेड ऐसा कुछ जो आप संभाल के रखें? हो सकता है कि इंसान ना भी हो बट ये कि हाँ यार इसने दिया था मुझे. Do you guys think you guys have something? Yes, I still remember. मेरी स्कूल बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे एक बैंड गिफ्ट किया था. तो वो क्योंकि वो इसी तरीके का ही बैंड था तो वो मतलब मेरे जहन में थी. एक चीज़ होती है ना चाइल्डहुड मेमोरी आपको रह जाती है. तो जब क्रोशे का भी आइडिया जब हम नुज़ा और हम बात डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहली चीज़ मतलब बहुत सारे थॉट्स में वो चीज़ मेरे पास आई थी कि यार एक कनेक्शन एक इमोशन से वो एक चीज़ जो हाथ से खुद बनी हुई है ना उससे वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं. तो उस टाइम पे किसी का बनाते दिखना तो तुमने कैसे किया? हाँ बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता था. जैसे अब हम देखें
सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी तो हर कोई गिफ्ट कर रहा है मतलब, लेकिन ये काफी यूनिक कनेक्शंस बिल्ड कर रही है ये चीज, तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, कुछ आपके पास ऐसा? ओके, सो मुझे तो फिजा नहीं दी थी एक ब्रेसलेट, और उसके ऊपर मेरे इनिशियल्स थे, सो इसलिए वो मेरे लिए इट्स वेरी क्लोज टू मी। Do you have something to share? तो ऑब्वियसली जिस टाइम में मैं अपने स्कूल में था तो उस वक्त हम फ्रेंड्स आपस में काफ़ी वो सुपरमैन ब्रेसलेट्स और माय बेस्ट फ्रेंड वो वाले सारे ब्रेसलेट, लेकिन वो रबर के होते थे तो वो वी यूज्ड टू एक्सचेंज, तो एक तरीके की करेंसी चल रही थी उस टाइम। तो एक जमाना था सलमान भाई वाला Yes. जैसे हम सब उसी era से belong करते हैं। Exactly. ठीक है, तो सही है। आई फील लाइक ये आइडिया ऐसा है कि बहुत से लोगों को कुछ ऐसा याद दिलाए, और ये कि अगर वो गिफ्ट में इस्तेमाल हो तो इट वुड होल्ड अ गुड Yes. स्पेशल मेमोरी। ओके, सो हु वुड बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम योर आइडिया? आई गेस सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उन जो है औरतों का होगा जिनसे जिनसे नुज़हा ने कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि उनको हमारी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको एक बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था ना। उनको काम बहुत अच्छा, हुनर उनको आता है, लेकिन उनको पास प्लेटफॉर्म नहीं थी। तो इस तरीके से बहुत जो है ना सपोर्ट मिलेगी उन लोगों को, और दूसरा हमें एक अपना बिजनेस आइडिया को जो है ना इनकॉर्पोरेट एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा जो हम चाह रहे थे, तो दैट वुड बी ऑफ रियली गुड हेल्प। Do you think something else about it? Yeah, so I would just add here कि it will also benefit the people who still think कि क्या gift करना चाहिए जो कि ज़्यादा memory hold करे। So I think ये चीज़ it would help them to give something in a better way. जैसे for example if we give normal things तो उनकी इतनी value नहीं होती, instead कि जिसके ऊपर आपने actually effort put की हो, so that Sentimental value. yeah, Yes. that is something that would matter the most too. Something more than the money and Yeah, the exactly. satisfaction. ठीक है, what would you say कि ऐसी कोई memory या ऐसा कोई sentiment जो लड़के इन चीज़ों से attach कर सकें? So men are not your typical gift givers. So there's struggle. Obviously, men like me struggle a lot when giving a sentimental gift, which could be something meaningful or customizable, like the product we're trying to sell over here, which is crochet jewelry. So I believe it would hold much more meaning for something that's handcrafted rather than something that's processed or coming out of a machine. So let's talk about challenges. What has been the trickiest part of this whole venture situation? I would say to explain everyone that it's not just cute, it holds value, it holds memories, मतलब क्योंकि लोगों को वही है ना चीज़ें जहन में, हाँ तो क्या ही हो जाएगा, ब्रेसलेट ही तो बना हुआ है, जैसे हमारे अम्मियाँ दादियों के ज़माने में वो जो बनते थे। तो अब हमने अभी भी हम कर रहे हैं, और अभी भी लोगों को हमने बहुत समझाया है कि भाई ये सिर्फ एक यार्न नहीं है जिसको हम जोड़ रहे हैं, ये कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है, एक इमोशंस जुड़े हुए हैं इससे, एक मेमोरी है जो कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो ना तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। सिर्फ क्यूट दिख नहीं रहा है, इसके पीछे बहुत ही एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, एक वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसमें आगे जाके कस्टमाइजेशन ऐड करने का सोच रहे हैं इसका मतलब? बिल्कुल, हम इसको जो है इनोवेशंस मज़ीद करने का भी सोच रहे हैं, जैसे डिफरेंट कलर्स ऐड कर दिए, डिफरेंट कलर्स के यार्न्स यूज़ कर लिए, कस्टमाइजेबल एज़ पर आवर कस्टमर चॉइस, जैसा वो कलर चाह रहे हैं, जैसे वो इनिशियल्स चाह रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हम इसमें इनोवेट जो है करेंगे आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं। और आपको क्या कहना है कि ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको सबसे मुश्किल लगा? I think I would carry with Fiza only कि it was very difficult to explain people. Gen Z जो है वो तो फिर शायद समझ जाएं कि क्या emotional connection है, लेकिन जो और लोग हैं वो नहीं समझते, वो they are like कि ये क्या कर लेगा, ये तो पहले भी होता था ना, तो it's nothing new for them. उस वो शायद उस दौर से गुजर चुके हैं, so they are not able to think the way we are thinking about it. So I think that was the difficult part for us. भाई सबसे मुश्किल पार्ट तो यही था कि लोगों को समझाया जाए कि एक यार्न जो एक क्रोशेट ज्वेलरी है वो ड्यूरेबल होती है, ऐसा नहीं है कि बस वो सिर्फ एक थ्रेड है तो वो खुल जाएगा, वो फट जाएगा, वो रहता है आपके साथ जब तक आप as long as you take care of it, बेसिकली हर चीज़ की ऑब्वियसली आपको टेक केयर तो करनी है, तो उसकी ड्यूरेबलनेस है उसके अंदर इतनी है, एंड इट्स नॉट जस्ट क्यूट ओनली। ठीक है, that is a good point to mention because people tend to think कि अगर वो कहीं से खिंच गया तो वो ज़ाहिर हो जाएगा, कि हाँ people do need to understand कि it is quite durable. अच्छा, so what do you think अगर आज ये business successful हो जाता है, where would you see it in 2-3 years? Okay, so what we are planning for it is कि if it goes like
it would be a boom. So we are going to launch the kits like online videos or things जो कि लोग देख के they can learn from them कि इसको किस तरीके से करते हैं, and फिर it would help them. Like for example, the people who deal with anxiety and depression, they can do it because as Fiza mentioned कि वो जब उन्हें untangle कर रही थी तो it required a lot of patience. So I think वो काफ़ी मदद करेगा उस चीज़ में उन लोगों की. तो I think हम इससे काफ़ी ज़्यादा रूट्स निकाल सकते हैं अपने लिए. And I feel अगर आप किसी चीज़ पे इतना फोकस होते हैं तो आपका दिमाग पीछे से खाली हो जाता है, and it is like आप इतना busy हैं कि your thoughts are not bothering you. Yeah. So I feel that is a really good idea. And what would you say about it? ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप तो यही होगा इसके अंदर कि हम थोड़ा कम्युनिटी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना स्टार्ट करें. तो उससे हमारा भी एक तरीके से फ़ायदा है. जो लोग ऑब्वियसली मौजूद हैं और जो करना चाहते हैं, स्पेशली सिंगल वुमेंस हो गई, आपके स्मॉल टीनेजर्स, वो जो ऑर्फन्स हैं, उधर भी हम जैसे जाके इस आइडिया को प्रपोज कर सकते हैं और उनको जैसे ये एक स्किल दे सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए ही काम नहीं आएगी, उनके अपने फ्यूचर के लिए भी काम आ सकती है. अब हम कुछ ह्यूमर वाले सवाल कर लेते हैं. जैसे कि अब आप मुझे बताएं ऑनेस्टली, ये आइडिया वाकई में किसी यार्न को अनटैंगल करते हुए या ये chaotic मोमेंट में था कि भाई ये कर लेते हैं बस ना, कुछ तो कर ही लेंगे, या फिर ऐसे शावर मोमेंट या कोई दोस्तों की बैठक? तो बेसिकली जब फिजा ने मुझे कॉल की तो आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ कर लेना चाहिए. उसके बाद फिर वी थ्री जस्ट combined whatever we thought and we were like नहीं, बस अब कुछ करना ही है. It's not about कि बस हम सोच के उसको इधर उधर करके वो करते हैं. But नहीं, it was like it was our own initial thought. ये chaotic हुआ. हाँ, chaotic भी है. कह सकते हैं We can just chaotic. mix everything up. अच्छा, so if your idea was a character in a movie, would it be a hero, a villain, or a side role? The wholesome best friend everyone underestimates, and it turns out to be an emotional backbone of the entire film. Okay, I like what you chose Yeah. to do here. ठीक है, सही है. A good sentimental value भी यहाँ भी add कर दूँ मेरे साथ. बिल्कुल. ठीक है, आप भी कुछ ऐसे ही बोलना चाहेंगे? Yes, of course. It's the main hero, I guess. ठीक है. अच्छा नहीं, कुछ चीजें आप अपने बारे में मुझे बताएं कि आप लोग मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? Night. Night person. Purely Night night person. कराची वाले. बिल्कुल बिल्कुल. कराची में सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना क्या है भी आप लोगों का? अब बिरयानी. बिरयानी. बता दो. कह सकते हैं. आप मैं तो बिल्कुल, मैं तो फूड क्रिटिक हूँ, तो मैं कराची के खाने ही कराची के ही खाने हैं असल में. तो हम तो भाई कराची वाले हैं, हमें कराची का खाना पसंद है. सही है. अच्छा, ऐसा कोई स्टार्टअप जो आप लोग बहुत एडमायर करते हैं, यू फील लाइक कि अगर हम भी कुछ इसी तरह करते रहें तो वी विल रीच टू दैट पॉइंट एज वेल? आई थिंक आजकल बहुत सारे बर्गर चेन्स वगैरह स्टार्टअप हो चुके हैं. तो अगर हम देखें तो वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट होते हैं एंड देन दे जस्ट रीच टू देयर गोल्स. तो आई थिंक हम भी अगर इसी तरह एक छोटे उससे स्टार्ट लें तो वी कैन जस्ट रीच टू आवर पोटेंशियल गोल व्हिच वी हैव थॉट ऑफ आवरसेल्व्स. व्हाट इज योर गो टू ऐप? Pinterest. Pinterest. या हमने क्रोशे के लिए Pinterest से बहुत आइडियाज निकाले हैं. अच्छा, आप लोग की क्रोशिंग की कलर पैलेट क्या है? मिक्स ऑफ कलर्स है. ज़्यादातर हम जो हैं लेमनिश और न्यूड्स कलर में ज़्यादा काम कर रहे हैं. येलो इज द ट्रेंड. हाँ, बटर येलो कलर बहुत ट्रेंड में चल रहा या है. पेस्टल्स बिकॉज़ Pastels, अभी इट्स ऑटम एज वेल, तो उसको लेते हुए वी जस्ट थॉट ऑफ इट. ठीक है, सर्टेन लास्ट क्वेश्चंस. डिस्क्राइब योर आइडिया इन वन वर्ड. Meaningful. क्रिएटिव. Innovative. Okay. Thank you so much for your time, guys. Please do share your accounts, LinkedIn accounts, to the channel so people can know where to follow you. And if you guys have a page for your jewelry, we would love to show some support. Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.